Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will do the third chapter of class 9th NCERT. The name of this chapter is Drainage. In this chapter we will read about Indian rivers and drainage system in India. The first topic is drainage. Drainage क्या होता है? The term drainage describes the river system of an area. जो term है drainage वो describe करता है river system को किसी area के. Look at the physical map, you will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. जो small streams आती है flow करके different direction से वो एक साथ आके form करती है एक main river को, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. तो drainage basin किसको कहते हैं? जो एक area drain किया जाता है किसी single river से उसको drainage basin कहते हैं. An elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as a water divide. तो एक water divide किसे कहते हैं? एक mountain like structure या फिर एक upland जो separate करता है two drainage basins को, उसको water divide कहते हैं. ये फैक्ट है एक. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज वन ऑफ द अमेजोन रिवर. जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर का है. ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया. इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको डिवाइड किया गया है. इंडिया की जो रिवर्स है उनको डिवाइड किया गया है टू मेजर ग्रुप्स में. फर्स्ट है द हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई है वो रिवर्स, और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स. द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. जो हिमालयन रिवर्स होती है वो पेरिनियल होती है, मतलब उनमें पूरे साल पानी रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. ये जो रिवर्स है वो वाटर रिसीव करती है रेन से और मेल्टेड स्नो जो हिमालय से आता है. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. ये टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स है जो ओरिजिनेट की है हिमालय से. एक है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र. द हिमालयन रिवर्स हैव long courses from their source of the to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses. Rivers है तो obvious है कि वो erosional activity करेंगी ही upper courses and carry huge loads of silt and sand. और ये carry करती है अपने साथ huge amount of silt and sand. In the middle and the lower courses these rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features. ये river meanders बनाती है, oxbow lakes and many other depositional features. They also have well developed deltas और well developed deltas भी होते हैं. A large number of peninsular rivers are seasonal. और जो peninsular rivers होती है वो mostly seasonal होती है as their flow is depend on rainfall. क्योंकि जो उनका flow है वो depend करता है rainfall पे. During the dry season even the large rivers have reduced flow of water. और ड्राई सीजन के टाइम पे जो फ्लो है वाटर का वो रिड्यूस हो जाता है. द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. और जो peninsular rivers है वो originate करती है mostly central highlands में और flow करती है west की तरफ. Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghat. Mostly ये originate हुई है western Ghat में and flow करती है Bay of Bengal की तरफ. द हिमालयन रिवर्स जो फर्स्ट है वो था हिमालयन रिवर्स और दूसरा था पेनिनसुलर रिवर्स. तो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है वो उनके बारे में पढ़ेंगे. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. जो मेजर हिमालयन रिवर्स है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है. दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ये जो रिवर्स है वो लॉन्ग है और ज्वाइन की जाती है बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज से. The river along with its tributaries may be called a river system. एक river along with its tributaries उसको कहा जाता है river system.
अब फर्स्ट रिवर है इंडस रिवर, द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत, जो रिवर है इंडस वो राइज करती है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ और एंटर करती है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunza join it in the Kashmir region। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा वो ज्वाइन करती है इसको कश्मीर रीजन में। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। द सतलज, द ब्यास, रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। और जो रिवर है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये ज्वाइन करती है और एंटर करती है इंडस में नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। और बाद में ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। A little over a third of the Indus basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir। 1/3 से कुछ ज़्यादा ही ये जो इंडस रिवर है, इंडस बेसिन है वो लोकेटेड है इंडिया में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। और इससे रिलेटेड एक ट्रीटी भी है इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम का 20% वाटर है, इंडिया सिर्फ 20% वाटर ही उसका यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब। ये वाटर यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पज के लिए पंजाब में, हरियाणा में एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। फिर है द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? गंगोत्री ग्लेशियर में एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और अलकनंदा रिवर इसको देवप्रयाग में ज्वाइन करती है उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। और फिर ये गंगा हरिद्वार में एंटर करती है, इमर्ज करती है माउंटेन से प्लेन एरिया में। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandhak and the Kosi। इसकी कुछ main tributaries है यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी। The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas। It flows parallel to the Ganga। ये flow करती है parallel गंगा के। And as a right bank tributary, और ये right bank tributary है, meets the Ganga at Allahabad। मीट करती है गंगा से इलाहाबाद में। द घाघरा, द गंधक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और जो बाकी 3 ट्रिब्यूटरीज है इसकी, घाघरा, गंधक, कोसी, ये राइज करती है नेपाल हिमालय में। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। और ये फ्लड करती है नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है इंडिया का, causing widespread damage to life and property। The main tributaries which come from the peninsular upland are the Chambal, the Betwa and the Son। जो main tributaries है जो peninsular upland से rise की है वो है चंबल, बेटवा और सोन। These rise from semi-arid areas, ये rise करती है semi-arid areas से, have shorter courses and do not carry much water in them। The Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal। गंगा फ्लो करती है फरक्का तक वेस्ट बंगाल में। This is the northernmost point of the Ganga Delta। और ये northern most point है गंगा के डेल्टा का। The river bifurcates here, और यहाँ पे river bifurcate कर जाती है। The भागीरथी हुगली a distributary flows southward through the deltaic plains to the Bay of Bengal। और फिर flow करता है Bay of Bengal तक।
The main stream flows southward into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. जो मेन स्ट्रीम है फ्लो करती है साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश में, उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और ज्वाइन कर ली जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से. फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और बाद में इसको मेघना बोला जाता है. दिस माइटी रिवर with waters flow from the Ganga, the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, और फिर ये Bay of Bengal में मिल जाती है. The delta formed by these rivers is known as the Sundarban Delta, और जो डेल्टा फॉर्म करते हैं ये मिलके उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. The Sundarban Delta derived its name from the Sundari tree. जो सुंदरबन डेल्टा का नाम है वो सुंदरी ट्री से ओरिजिनेट किया है. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है. इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर. ये होम है रॉयल बंगाल टाइगर का भी. द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर. जो लेंथ है गंगा की वो ओवर 2500 किलोमीटर है. नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. जो ब्रह्मपुत्र है वो राइज करती है तिब्बत में ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलज. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस. इसकी जो लेंथ है वो स्लाइटली लॉन्गर है इंडस से. एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाइज आउटसाइड इंडिया, और मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाई करती है आउटसाइड इंडिया. इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज. ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड हिमालय के पैरेलल. ऑन रीचिंग द नामछा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न, और नामछा बरवा पे रीच करने के बाद ये एक यू टर्न लेती है और एंटर कर जाती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में. Here it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. और बाकी रिवर दिबांग लोहित इसको ज्वाइन करती है और फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र असम में. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और सांगपो कहते हैं तिब्बत रीजन में. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर overflow its bank causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. और बांग्लादेश और असम में ब्रह्मपुत्र की वजह से एवरी ईयर फ्लड आता है. द पेनिनसुलर रिवर्स. द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट. जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वो फॉर्म होता है वेस्टर्न घाट से, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट. ये रन करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न कोस्ट के नियर. द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो करती है ईस्टवर्ड और ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में. दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ. से रिवर बनाती है डेल्टाज. The Narmada and the Tapi are the only long rivers. जो नर्मदा और तापी है वो only long rivers है which flow west and make estuaries. ये flow करती है west direction में. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively small in size. और इनका जो size है वो comparatively small है. इसके बाद जो peninsular rivers में first river है वो है नर्मदा. नर्मदा बेसिन, इसके बारे में पढ़ेंगे. द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स. जो नर्मदा है वो राइज करती है अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश में. इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग. ये मध्य प्रदेश में राइज करती है और फ्लो करती है वेस्ट की तरफ. All the tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. All जो tributaries है नर्मदा की वो short है. Most of these join the main stream at right angle. और जो इसकी most
ट्रिब्यूटरीज है वो इसको ज्वाइन करती है राइट एंगल पे। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा का बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट। फिर है नेक्स्ट द तापी बेसिन। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस। जो तापी रिवर है वो राइज करती है सतपुड़ा रेंज में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है कंपैरिजन में नर्मदा के। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट को। The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. जो coastal plain है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो नैरो है। Hence the coastal rivers are short, और इसी वजह से जो coastal rivers है वो short होंगी। The main west flowing rivers are साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। कुछ मेन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। लूनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। द गोदावरी बेसिन नेक्स्ट है गोदावरी रिवर। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये राइज करती है वेस्टर्न घाट की स्लोप से इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, और जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो भी लार्जेस्ट है अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। जो इसका 50% एरिया है, बेसिन एरिया है वो लाई करता है महाराष्ट्र में भी। तो ये कवर करता है महाराष्ट्र के पार्ट को, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंचरा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा। The last three tributaries are very large. जो लास्ट की 3 ट्रिब्यूटरीज है वैनगंगा, पैनगंगा और मंजरा, ये लार्ज है। ये लार्ज एरिया को कवर करती है, लेंथ में भी ज़्यादा होगी और ब्रेथ में भी। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। और जो इसकी लेंथ है, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को कवर करती है तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो महानदी रिवर है वो राइज करती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये फ्लो करती है उड़ीसा से और फिर बे ऑफ बंगाल तक जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। जो लेंथ है इस रिवर की वो 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। और ये इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा को। द कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी के बाद। एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और रीच करती है बे ऑफ बंगाल तक। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये कवर करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के एरिया को। फिर है द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी राइज करती है ब्रह्मगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट के। एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये कवर करता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के एरिया को।
द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो रिवर कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया का, नॉन एज शिवम समुद्रम। The hydroelectric power generated from the fall is supplied to Mysore, Bangalore and the Kolar goldfield. 71% of the world's surface is covered with water but 97% of that is salt water. ये एक फैक्ट है कि जो 71% वर्ल्ड का सरफेस है वो कवर है वाटर से, बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। लेकिन जो 97% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, जो 3% फ्रेश वाटर है, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस। उसका भी 1/3 पार्ट आइस की फॉर्म में है। इसके बाद है कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि फेमस दल लेक हो गया। लेक्स ये भी एक फैक्ट है, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द अरल सी। अरल सी रशिया के पास में है। जो लेक्स है लार्ज एक्सटेंट के, मतलब कि जो लार्ज एरिया में फैले हुए होते हैं लेक्स, उनको सीज कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी हो गया, डेड सी और अरल सी। इंडिया हैज मैनी लेक्स, इंडिया में भी काफी सारे लेक्स हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, मोस्ट ऑफ द जो लेक्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ कंटेन करते हैं वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन कुछ लेक्स होते हैं जो कंटेन करते हैं वाटर को सिर्फ रेनी सीजन में, जैसे कि लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। जो सेमी एरिड रीजन में लेक्स होते हैं वो मोस्टली इस टाइप के होते हैं। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द result of the action of glaciers and ice sheet, while the others have been formed by wind, river action and the human activities. A meandering river across a flood plain forms cut-off lakes. जो meandering river होती है वो और जो उनका फ्लड प्लेन होता है वहाँ पे वो कट ऑफ लेक बनाती है, जिनको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। Spits and bars form lagoons in the coastal areas, that is Chilika Lake. Chilika Lake भी एक ऐसा ही लेक है, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. Sometime कुछ lakes वो सीजनल लेक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सांबर लेक हो गया राजस्थान में, लेकिन ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, और इसके वाटर को यूज किया जाता है सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। जो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ये ग्लेशियल ओरिजिन के होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। और ये जो लेक्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं स्नो मेल्ट से। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर का वो रिजल्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटी का। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। द दल लेक, भीमतल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम ऑफ other important freshwater lakes. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाखरा नागल प्रोजेक्ट भी जिसे कहते हैं। तो नेचुरल लेक से अलग the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led the formation of lake. जो डैम बनाए जाते हैं उनके थ्रू लेक बनते हैं, और वो भी लेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर लेक हो गया भाखरा नागर प्रोजेक्ट के अंडर। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रोल क्या है रिवर्स का इकोनॉमी में। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पार्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में काम आती है। वेयर इंडिया जैसी कंट्री में एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसलिए इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।
Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.